17th chapter, 99th point, 23rd paragraph. The mantra of dedication. Chal. The Gita further says that after infusing the life with the spirit of yajna, it should be totally dedicated to the Lord. It may be asked, what is the necessity of dedicating it to the Lord when it is already full of service? The point is that it's easy to say that life should be imbued with service, but it is far more difficult to achieve this. It can at best be achieved Partially. partially. And that too after many births. Moreover, the action may be full of spirit of service and still they can lack the spirit of worship. Hence, the action should be dedicated to the Lord with the mantra Om Tat Sat. This is a very, very kind of a purifying mantra. Purification ke liye, this works very well. And it is such a neutral kind of a thing. कि नहीं तो लोगों के मन में ऐसा रहता है ना कि मंत्र इस टाइम पे करने का, इस टाइम पे नहीं करने का वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है इसके लिए. अच्छा, VCT की तरह इसको एनी टाइम एनीवेयर कर सकते हैं. ओके. इट इज अ क्लेंजिंग मंत्र. अच्छा. जो भी कुछ बाधाएं वगैरह है इंटरनल, उसको हटाने निकालने के लिए इट वर्क्स वेरी वेल. It is difficult for the acts of service to be fully saturated एकदम से दब के भरा हुआ. saturated with the true spirit of service. When we seek well-being of others, we satisfy our own interest too. There is no action which is purely in the interest of others. It is impossible to do anything that is free from even a trace of self-interest. We should therefore wish that our service should become more and more selfless and desireless. If there is a wish to do increasingly purer service, then you must dedicate all the action to the Lord. Jnandev had said, Namamruta Godi Vaishnava Landhli Yogiyam Sadhli Jivan Kala. Vaishnav tastes the nectar-like sweetness of the name of the Lord, and the yogis have mastered the art of living. Sweetness of the name and the art of living are not two different things. Chanting the name from within and mastering the art of living. These are in tune with each other. The bhakta and the yogi are one and the same. When actions are dedicated to the Lord, self-interest, altruism, and the supreme interest, the supreme good, will become one. I and you are now apart. They should first be united to form we, which should then be united with Him, with the Lord. Firstly, we should achieve harmony with the world and then with the Lord. That is what the mantra Om Tat Sat suggests. How nice. So well explained. So simply put. The Lord has countless names. Vyasa compiled 1,000 of them in the Vishnu Sahasra. 1,000 names of Lord Vishnu. Vishnu Sahasranam, sorry. In fact,
any name that we can think of, he is his. Whatever name appeals to us, we should take it to be one of his names and should see the corresponding attribute present in the whole of creation and shape our life in accordance with it. To meditate on a name, to see the corresponding attribute present in the whole of creation and to imbibe that attribute. I call it Tripada Gayatri, three-step sacred mantra of deliverance. For example, if we take the name Daya, दया माया, दया माया, Daya, Daya Maya or Rahim, one full of mercy and compassion. That is, look upon the Lord as merciful and compassionate. We should envision the merciful and compassionate Lord preventing the परवेविंग, entire creation, pervading, sorry, pervading the entire creation. We should release that He रियलाइज. has. इमाम मैम आज मुझ कुछ हो गया है. क्यों ऐसा हो रहा है? We should realize that He has given a mother to every child. He has given air for all to breathe. Thus we should breathe. Hey Bhagwan. Thus we should see that in the scheme of the merciful and compassionate Lord, there are mercy and compassion. And then we should infuse mercy and compassion into our own lives. The Gita suggested the name that was most prevalent in that age, Om Tat. ओम तत्सत, यानी ओम तत्सत भगवान का नाम है, करके ही लो जैसे. एक्सलेंट, एक्सलेंट. कि मेनली तो यही है. एक आज आई थिंक इट वाज अ शॉर्ट वीडियो दैट समबडी सेंट, कोई कथाकार के उसमें से क्लिप थी कि एक जना गया भगवान के पास में कि मुझे आपसे कुछ चाहिए लेकिन मुझे मांगना नहीं आता है. तो भगवान बोले, बोल तेरे को जो भी चाहिए दूंगा, लेकिन अच्छा ऐसा करो, आप मेरे को बताओ आप क्या दे सकते हो. तो के मेरे पास में दो चीजें हैं देने के लिए, एक है माया और एक है भक्ति. बोल तेरे को क्या चाहिए. लेकिन उनसे क्या होता है, जाने बिना कैसे कैसे बोलूं कि कौन सा चुनूं. तो के दोनों से, दोनों ही नचाती है. माया भी नचाती है, भक्ति भी नचाती है, लेकिन कुछ तो फर्क होएगा ना. कि वैसे नचाती है दोनों, खाली फर्क इतना ही है कि माया मनुष्य को नचाती है और भक्ति भगवान को नचाती Very nice. है. तो यहाँ पर भी वही कहा है कि सरेंडर योर सेल्फ, सरेंडर ऑल योर एक्शन. लेकिन प्रैक्टिकली लाइफ के अंदर शुरू में ही बोल दिया विनोबा जी ने कि 100% नहीं होएगा, क्योंकि मनुष्य मात्र जो है उसके अंदर कमी तो होगी. तो 100% नहीं होएगा. तो तुम ये देखो कि दिन प्रतिदिन कि ये जो लगाव है, जिस यानी तुम सर्विस भी कर रहे हो लेकिन उसके अंदर सेल्फ इंटरेस्ट आता है, तो उस सेल्फ इंटरेस्ट को कम 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 कैसे कर सकते हो. तो कम से कम उसको, सेल्फ इंटरेस्ट को कम करो. और उसी प्रकार दूसरा जो सर्विस की भावना है, जो सरेंडर की भावना है, सर्विस करके उसको ईश्वर प्रणिधान कर देना, सरेंडर कर देना, उसको बढ़ाते रहो.
तो हम्म वो करने के लिए तुम ओम तत्सत का इस्तेमाल कर सकते हो। यानी जब तुम अच्छा। सर्विस कर रहे हो, तुमको लगता है तुम अच्छा नेक काम कर रहे हो, नेक तो हो रहा है, लेकिन उसके अंदर वो अहम आए बिना रहता नहीं है। हम हाँ। तो ओम तत्सत करते रहोगे तो वो कम होता रहेगा। यानी अच्छा, माइंड के अंदर अहम नहीं आएगा, ओम तत्सत आएगा। समझ गए। है ना? तो हम्म ओम तत्सत चलता रहे। तो वहां से उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, वो जो माया और वो जगह सब नहीं जो है है ना, ना। हाँ, जगह। कर्तापना का जो भाव जो हाँ, है ओम वो तत्सत कम ने हो जाए। ऑक्यूपाई कर रखी है। और वृत्ति हम्म तो उसको तो जैसे जगह मिलेगी तभी आएगी ना। एक वृत्ति मन हम्म में रह सकती है एक बार में, हमको सांख्य ने सिखाया है। एक बार में मन में एक ही वृत्ति रहेगी। योग भी यही बताता है। सही है। ओम तत्सत की वृत्ति यदि बनी हुई है, और ओम तत्सत को कैसे देखना है वो उन्होंने और आगे समझा दिया कि हम्म ओम तत्सत बोलो, चाहे विष्णु सहस्त्र नाम में से हजारों नाम दिए हैं कोई भी। विष्णु के, कोई भी बोलो, हम्म उसमें से सबसे सुंदर और इजी है ओम तत्सत। हम्म ऐसा करके उन्होंने बोला है। द गीता सजेस्ट द नेम दैट वाज मोस्ट प्रेवलेंट एट दैट एज, ओम तत्सत। फटाक से मतलब मुंह पे आ जाए ऐसा। एकदम सरल है। और वो आंतरिक जाप यदि उसका होने लगे, लगातार सालों साल करते रहो, तो वो आंतरिक हो ही जाता है ना। और हर एक काम एक को तो करते वक्त हाँ। वही करो। हाँ, बोलो बोलो। मैंने कहा हर एक हाँ, काम को करते वक्त वो चालू ही रहे। यस, वेरी ट्रू। कोई भी चीज अपनाओ ना तो वो इजी तो है ही नहीं, थोड़ा टाइम लगता है। बट अगर हाँ, टके टके रहे ना, टिके हाँ, रहे, तो वो ऑटोमेटिक अपने आप हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। टिकना टिकना बहुत जरूरी है। रिपीटेडली, परसिस्टेंटली, फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब आज के जमाने के अंदर इन्वेस्टमेंट वाले वैसे ही बोलते हैं ना, हम्म म्यूचुअल फंड वगैरह के अंदर इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो, बहुत आता है आजकल। और लेकिन इन्वेस्ट करके लॉन्ग टाइम छोड़ दो, हम्म, 2-5 साल उसको छोड़ोगे तो तुम्हारे को कुछ उसमें से गेन होगा। आज इन्वेस्ट करो, हाँ, कल निकालो तो फिर नहीं होगा। सही है। तो ये भी एकदम इन्वेस्टमेंट है। सही। ये मटेरियल लाइफ का इन्वेस्टमेंट है, ये स्पिरिचुअल लाइफ का इन्वेस्टमेंट है। हम्म क्या बात है मैम, आज आप फिलोसॉफी की बातें कर रहे हैं। इसमें फिलोसफी तो है। ओम तत्सत। हम्म, चलो, पढ़े आगे। मैं पढ़ूं? थोड़ी देर में हाँ, पढ़ आप लूं, पढ़ो। तेरा हाँ, आ जाएगा स्पीड। ट्वेंटी यस। फाइव ओम मीन्स यस। यस, गॉड does exist. He exists even in this 20th century. स एव अद्य स उ श्वः. He exists today. He existed yesterday, and he shall exist tomorrow. He is always there. The creation too is always there, and we too are ever ready to continue our spiritual quest in all earnestness. We are the seekers and the worshippers. He is the Lord, and everything in the creation is a means for worship. ये देख, यहाँ पर फिर जो कहा है, एवरीथिंग इन द क्रिएशन इज अ मीन्स फॉर वर्शिप। सांख्य वाला स्टेटमेंट आ गया। हम्म द प्रकृति इज ऑल फॉर द पुरुष, है ना? यस। When our whole being gets charged with this feeling, we may be said to have digested the meaning of Om. The spirit of Om should permeate our being and find expression in our sadhana. See the sun at any time.
It is always there with its rays, never without them. In the same way, our sadhana should be clearly visible in our life to all at all the times. यानी इनका कहने का मतलब शायद ये है, शायद क्या यही है कि साधना, अभी जो हमने लॉन्ग टाइम की बात की, कि साधना तब तक करो, उतनी करो कि तुम ही साधना हो ऐसे दिखने लगो हर समय, हर किसी को. Only then it can be said that we have assimilated the spirit of Om. यानी खा के चबा के डाइजेस्ट करके एसिमिलेट भी करना है. अच्छा, एसिमिलेशन पता है ना? डाइजेशन के बाद में खाना जब Yes, डाइजेस्ट हो assimilation. जाता है, उसके बाद में जो उसका रस बनता है वो बॉडी में हर एक सेल्स के पास में पहुंच के वो सेल्स उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, Yes. वो अपना बना लेते हैं ना अपने ढंग से जो उनको चाहिए. हाँ. उसको बोलते हैं एसिमिलेशन. Yes. Yes. तो ओम तत्सत को भी, यानी ईश्वर को भी, भक्ति को भी, या सरेंडर को भी उतना आत्मसात कर लेना है कि इट इज नॉट सेपरेट फ्रॉम यू. देन कम्स सप्त. द लॉर्ड इज सप्त, दैट इज ही इज गुड and auspicious. Look at the creation with this feeling, and you will find His goodness and auspiciousness in it. When you take out a pitcher full of water from a river, a pit is not formed there. Surrounding water rushes in immediately to fill the depression. What an expression of love and benignity. A river abhors depression. Nadi vegena shuddhayati. The water of a river is clean and pure because it is flowing continuously and speedily. The river of creation is also getting purified continuously and speedily. That is why it is good and auspicious. Let our actions too be likewise. To understand the Lord as Sat, all our actions should be full of purity and devotion. All our actions, our entire sadhana, should be continually examined and progressively purified. बहुत अच्छा तरीका बताया है. Speaking, what he is saying is be in the present, है ना? और आई थिंक द जापानीज फॉलो इट वेरी वेरी वेल. एक वीडियो अभी आज ही देखा. इट इज टॉकिंग अबाउट, आई थिंक आई विल सेंड इट टू यू इन दिस ग्रुप ओनली मे बी. बहुत अच्छा है अबाउट द जापानीज कल्चर, कि वो लोग कुछ भी पुराना रखते नहीं है. और द थिंकिंग बिहाइंड इट, द लॉजिक इन इट इज वेरी ब्यूटिफुल. कि भाई और ये तो अपन योग में भी यही कहते हैं ना, तमस हो जाता है. कोई भी चीज एक जगह ज्यादा समय पड़ी रहती है तो वो उधर तामसिक एनर्जी कंसंट्रेशन हो जाता है. और ये लोग जो क्या वास्तु करने वाले भी, वो लोग भी वैसे ही बोलते हैं. दिवाली के ऊपर अपने साफ सफाई करने के अंदर घर को उलट पुलट करके थोड़ा सामान इधर उधर जचाना, हिलाना और उसकी जगह बदल देना. इट इज ऑल अबाउट चेंजिंग द एनर्जी. कहीं पर भी तमस इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए. एक ही एक चीज हर जगह एक जगह पड़ी रहे तो वो तामसिक हो जाता है. तो जापानीज कल्चर में इसको बहुत ज्यादा ही वो लोग काम में लेते हैं. कुछ भी पुराना हो, नकामा हो, नहीं यूज कर रहे हो तुम, तो वो निकाल ही देते हैं. वो ही चीजें रखते हैं जो करंट में काम की है, जो यूजफुल है.
and they always have minimalistic things, क्योंकि इमीडिएटली काम के अंदर थोड़ी ही चीजें आती है, ज्यादातर चीजें तो महीनों महीनों बरसों बरसों पड़ी रहती है। तो ऐसी चीजों को निकाल देना चाहिए, ऐसी चीजें घर में नहीं रखनी चाहिए, उससे तमस पैदा होता है। इट इज इनऑस्पिशियस एज दे से। तो वही बात इन्होंने कही है कि पानी क्योंकि बहता रहता है इसलिए साफ है नदी का, और कुंड के अंदर पानी इकट्ठा होता है तो वो मैला हो सकता है, क्योंकि मैल भी इकट्ठा होता रहता है, उसमें जमा होता रहता है। नदी का पानी क्योंकि बहता रहता है। और वो जो पहले जो एक एग्जाम्पल दिया वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, कि पानी में से तुम एक मग भर के पानी निकालो तो वहां पर खड्डा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्यों? क्योंकि पानी बह रहा है, वो भरता रहता है होने से, खड्डा होने से पहले ही। तो प्यूरिटी का मतलब है फ्लो होना, और प्रकृति भी उसी प्रकार से है कि कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रही है। प्रत्यय सर्ग और भौतिक सर्ग की बात करते हैं हम सांख्य में, तो लगातार एवोल्यूशन चल ही रहा है उसका। इट इज नॉट स्टॉपिंग, इट्स नॉट स्टैंड स्टिल एट एनी टाइम, और इसलिए वो प्योर है, उसकी प्यूरिटी बनी रहती है बिकॉज ऑफ इट्स कंटिन्यूटी इन वॉट एवर इट इज डूइंग। फॉर वाटर इट इज फ्लोइंग, फॉर प्रकृति इट इज एवोल्यूशन, हमारे लिए कर्म है। प्यूरिटी एंड डिवोशन, सत। चलो, थर्ड वर्ड, देन कम्स तत्। तत् मीन्स दैट something different, something unattached to the creation. The Lord is distinct from the creation and is unattached to it. As the sun rises, the lotuses bloom, the birds leave their nests, darkness disappears, but the sun is somewhere far off, quite aloof from all these outcomes. When our actions become detached and disinterested, it can be said that we have digested Tat. Wow. When our actions become detached and disinterested, it can be said that we have digested Tat. बहुत बड़ी बात। हाँ, ओम तत्सत। तो अभी इसका मीनिंग ध्यान में रख के बोले, तज्जप तदर्थ भावनम करें तो और भी मजेदार है ना। सबसे पहले तो स्पिरिचुअल क्वेस्ट एंड अर्नेस्टनेस, इट शुड परमिएट अवर बीइंग एंड फाइंड एक्सप्रेशंस इन अवर साधना, इज ओम। सत के लिए प्रेजेंट में होना, और तत् के लिए डिटैच होना, ओम तत्सत। In this way, the Gita teaches us to dedicate all the actions to the Lord using the Vedic name Om Tat Sat. The idea of dedicating all the actions to the Lord has already been introduced in the 9th chapter. The verse Yat Karoshi Yadashnasi tells the same thing. The same idea has been elaborated further in the 17th chapter. This chapter has particularly pointed out that the actions to be dedicated to the Lord must be sattvic, for only then they will be worthy of being offered to Him. इनफैक्ट ओम तत्सत बोलते हुए करोगे, और यदि उसका ओम तत्सत का भाव अर्थ मन में है, तो ऑटोमेटिकली अपना चॉइस ऑफ एक्शन विल बिकम of the positive kind, no? You won't indulge into the negative kind of thinking or actions and all that. लेकिन of course बात तो यही है, भाव के साथ में हो।
मैकेनिकल होगा तो फिर तो तामसिक अब वो ही हो जाएगा। वेरी। चलो मैं अभी पढ़ती हूँ। ठीक है, पढ़ो। The name of the Lord effaces sins. All this is very well. Still, a question remains. A virtuous man may be able to digest the name Om Tat Sat. But what about a sinner? Is there any name that a sinner too could take? Yes, a sinner too can chant Om Tat Sat. All names of the Lord can lead us from untruth to truth, from sin to innocence. You must purify your life gradually. The Lord will then certainly help you. He will support you in your moments of weakness. ओम तत्सत यानी इवन अ सिनर, पापी भी कर सकता है, उसका भी प्यूरिफिकेशन होगा। Hmm. तो इट्स अ If प्यूरिफिकेशन मंत्र, इवन यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी, है ना। हाँ, आपने भी बोला ना, सबसे हम्म। पहले वही तो बोला। या ओके। प्यूरिफाई। अच्छा, अरे हाँ, आज अपने को वापस इसमें से लॉग इन करना पड़ा ना, तो 10 मिनट का मैसेज आ गया। वैसे भी मैम ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। हाँ ठीक है। इफ आई एम आस्क्ड टू चूज। नहीं, बाकी है क्या? हाँ, नहीं नहीं, बाकी है ना। लास्ट लास्ट पैराग्राफ है ये, बराबर है। दिस इज द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर। ओके। इफ आई एम आस्क्ड टू choose between virtues but egoistic life on the one hand and sinful but humble life on the other. I may falter in giving an ये क्या लिखा है? अनइक्विवोकल आंसर, unequal यानी कि एक तरफ un यदि मुझे ये कहा जाए कि चूज बिटवीन वर्चुअस इगोइस्टिक लाइफ एंड सिंफुल हम्बल लाइफ, हम्म तो आई मे फॉल्टर, तो मैं दुविधा में पड़ जाऊंगा, गिविंग एन इन अनइक्विवोकल आंसर, कि एक हम्म सिंगल आंसर देने में मेरे को मुश्किल होगी। बट माई बराबर। हार्ट वुड सर्टनली एक्सक्लेम, लेट मी रादर हैव द सिन which turns me towards the Lord. If a virtuous life is going to make me forget Him, then let me rather have a sinful life. Wow, हम्म that makes समझा। me think of Him. तो हम्म एक बार तो ये लगेगा ना कि लाइफ वर्चुअस है लेकिन इगोइस्टिक है, यानी बहुत अच्छा प्योर जीवन है, सब सही काम कर रहे हो, लेकिन उसमें ईगो है, और ईगो है यानी कि भगवान नहीं है। द टू कैन नॉट बी टुगेदर। हम्म और दूसरा है कि भाई लाइफ सिंफुल है लेकिन हम्बल है, हम्बल है यानी कि सरेंडर है। हम्म तो सिन का तो ठीक है, सिन करेंगे तो उसका परिणाम भी तो गलत मिलेगा, लेकिन एट एट द सेम टाइम यू आर एट द फीट ऑफ लॉर्ड, यू आर सरेंडरिंग टू हिम। तो लेट मी रादर, यानी विनोबा जी अपने आप के बारे में जैसे कह रहे हैं कि लेट मी रादर हैव द सिन विच टर्न्स मी टुवर्ड्स द लॉर्ड। If a virtuous life is going to make me forget Him, then let me rather have a sinful life that makes me think of Him. It is not that I am justifying a sinful life. चल कंटिन्यू कर। but vanity about the purity of life is a greater sin. Tukaram has said, "Bahu ભીતો જાણપણા આડનયો નારાયણ." Oh Lord, I am afraid of being learned. लर्नेड। Let it learn it. Let it not
separate me from you. मुझे को Let पढ़ा us लिखा होने का not, डर लगता है, यदि पढ़ाई हाँ, लिखाई से मैं आपसे दूर हो जाऊंगा। दूर हो जाऊंगा. Yes. हाँ। Let us not have such a greatness. It is better to be a sinner and grieve. જાણતે લેકરું માતા લાગે દૂર ધરું. A mother separates from herself a grow up child, but she would hold to her bosom her innocent child. I do not want to be virtuous and independent. Rather, let me be a sinner dependent on the Lord. His holiness is more than enough to wash away my sins. We should try to avoid sin. If we fail in our efforts, our heart will cry out for His help. He is always there, watching fondly. Tell Him, I am a sinner, and that is why I have come to your door. A virtuous man has the right to think of the Lord and seek refuge in Him because He is virtuous. A sinner has the right to do so because he is a sinner. यानी अभी तक तुम एक तो वो ये टॉक्स भी तो वहां दे रहे थे ना जेल में, हम्म. कैदियों के लिए टॉक्स हो रहा था ना ये। यस. तो पापी. हाँ। हाँ, मतलब जिन्होंने मतलब ये पाप किया, खराब काम या किया है, उसके लिए. मस्त. तो सबके लिए है ओम तत्सत। हम्म. लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने जो ओम तत्सत का इंटरप्रिटेशन किया है वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। ओम गो टू द हाईएस्ट, सत इज इन द प्रेजेंट एंड डिटैच, तत्, ओम तत्सत। चलो ठीक है, तो 18th चैप्टर फिर नेक्स्ट टाइम ही शुरू करें। अभी अभी कितना टाइम है टाइम तो है, बट विल हैव टू रीलॉग इन। है? करते हैं ना फिर. ठीक है, तो फिर इसको एंड करके वापस लॉग इन हाँ, करते हैं। अपना 4 बजे तक का टाइम है, वहां तक हाँ करते तो हैं. फिर करते हैं इसको।